अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज कमल मसरूर। मैं वीक प्रोग्राम करता हूँ, इतना मुझे मौका मिल सकता है के बारे में बात करें। ये एक ऐसा इदारा है जो कॉर्पोरेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स की अथॉरिटी माना जाता है, जो कि स्ट्रेटजीज एंड जो लॉ है वो डेवलप करता है। और उसके लिए हमारे पास एक बड़े ही अमेजिंग हमारे एक दोस्त हैं, अब्दुल रहीम साहब। ही इज़ द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर एट SECP। बड़े ही एक इमर्जिंग और इनोवेटिव माइंडसेट के आदमी हैं, और मैं उनको वेलकम करूंगा। अब्दुल रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम कमल, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस द शो। और आज आपसे हम बड़ा डिटेल में बात करेंगे। आपसे वैसे तो नॉर्मली हम कुछ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, बट इट्स बेटर कि हम इसको ज़रा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आपका एक शॉर्ट इंट्रो अगर आप हमें दे सकें, हु इज़ अब्दुल रहीम और आपका क्या विजन है, ये इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा दीजिएगा। जी श्योर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैप्पी टू बी हियर. So I've been with SECP now for the last 15 months. उससे पहले I was based in Dubai for about 9 years. My entire career has been with working in financial services and technology. So I am a computer engineer by profession, and and after that I did my MBA, and post that went to Columbia University for my postgraduate diploma and graduated from Columbia University in New York. Very excited to be part of SECP. As you know, the government's vision is to drive the digital agenda in Pakistan. So, I see this as a fantastic opportunity, and this is how we have geared up and really focusing in driving digitization for SECP in Pakistan. Excellent. Excellent. Excellent लिए हैं for the digitization of this industry. Along with आप ये भी बताइएगा कि आपका 2020 और 21 का भी क्या प्लान है? So initiative regarding that digitization in this ecosystem. जी. So last year, when I joined the institution, so with the support from the top management, we structured an entire digitization program. It's called LEAP. And so as part of that, the LEAP journey, we have a very clear laid out project plan on, to achieve the end-to-end digitization for SECP. The focus is in definitely digital. As you know how the world is changing, and especially we've seen during COVID, the demand for digital services is going is increasing with time. So internally we don't we don't differentiate ourselves as a public sector entity. We really want to set the benchmark and be really seen as neck to neck compared to any other private sector entity in Pakistan. So, the focus on top management is, on digitization. So we structured this program. At the same time, we've been focused on improving our operations and driving the agenda. So some of the things I'll talk about what we have done over the last year. So we've continued to improve our flagship system, which is called eServices, and it's the system where you can register your company online. In Pakistan, about more than 50% of companies are registered the same day. So it's an entirely online system. And we've been really focused on how to continue to improve our user experience and user interface. It's important to mention it's a one window operation. So we are integrated with different entities. So, for example, FBR, Nadra, the provincial governments in Sindh, Punjab, the taxation authorities, excise and taxation authorities, EOBI, etc. So that way, for a company, it's easy to obtain these services through this one window.
operation. Okay. At the same time, Okay. we are integrated with FMU from an AML perspective, and we've worked on delivering different projects. So I think we are one of the first public sector entity to have a conversational AI bot for our customers. And the approach is to not just think as the regulated entities as just as our regulators, but also as our customers. We've just recently digitized our entire legal framework, rules, regulations. And as you can imagine, these were dating back to decades old, and trying to figure out a relevant law or a rule or a regulation is not easy. So we've just digitized it and made it available again for the general public. And similarly also focused on improving and automating our internal operations. So that continues to be a focus area. For next year, we under that LEAP program, there are different areas in focus. So one of the key deliverable was to deliver and establish a digital collateral registry, which went live end of April. It's an entirely digital system. There's no paper involved. The entire process is electronic. The system is available for banks to register the security interest, and it's also available for general public to search these records free of charge. It's a very important step because, as you know, in Pakistan, the financing to SMEs is very low. Yep. And what the system does is it establishes a framework for banks to finance smaller businesses by the borrower placing their movable assets. So especially if you are in agri or even if you're a tech company, to say so you can register your account receivables, you can keep your machinery or crops, etc., as asset against which banks can do financing. So that system again came live earlier this year. As we move on, we do plan to upgrade our corporate registry system. So the system was put in place in 2010, if I'm not wrong. So with the new technologies, we understand we want to leverage the latest technologies available out there and really upgrade our corporate registry system. Another initiative is the digitization of financial statements. So as you can imagine, we get a lot of financial data. Just interrupting you, can we make it in Urdu, because audiences की कुछ comments आए थे, they want कि जी आप उर्दू में बात करें तो ज़्यादा ठीक है. Sure. अच्छा, दूसरी चीज़ है जी financial. So SMEs are actually more interested कि जी हमारे लिए क्या है SCCP के पास. So as I mentioned, एक तो चीज़ एक जो struggle है कि आप banks के पास जाएंगे, so banks will generally ask for immovable asset. अगर आपकी property है, land है या cash collateral लोन लेने के लिए. So with the secure transaction registry, आपके पास कोई मशीनरी है या आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, ये क्रॉप हैं, सो वो आप जाके बैंक्स के पास जाके एंड अगेंस्ट दोज आप फाइनेंसिंग ले सकते. सो द आइडिया इज के थ्रू दिस सिस्टम एंड थ्रू दिस फ्रेमवर्क SMEs को फाइनेंसिंग एनहांस हो. So today the financing percentage in terms of the overall credit पूरे borrowing banking credit में बहुत कम है. So the idea is इसको बढ़ाया जाए, and that is why the government is focused, and we've been able to deliver the system. इसकी जो अगर वो लोग SEC के Twitter page पे चले जाएं, they can see the link to the registry system. वहाँ पे जाके link available होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं. एक डेडिकेटेड सपोर्ट ईमेल अवेलेबल है, वहाँ पे भी सवालात भेज सकते हैं, वहाँ से भी जवाब लोगों को मिल सकते हैं.
बट मोस्टली द अपडेटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल आइदर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, सॉरी, और या ट्विटर के पेज पे, SCCP के ट्विटर के पेज पे जाके वो सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जी आप कंटिन्यू करें इस पर। ठीक जी, तो सॉरी, वो इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, सो मैं आई विल ट्राई टू कवर। मैं एक्चुअली आपका जो लीप प्रोजेक्ट है उसके बारे में मैं जरा ज्यादा चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसकी डिटेल्स दें, देन फिर हम STR के ऊपर आते हैं। जी, सो लीप पे जिस तरह मैं मेंशन कर रहा था, सो लीप के कुछ 3-4 की पिलर्स हैं। पहला पिलर था STR जो कि डिलीवर हो चुका है। दूसरा पिलर है हमारा जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री सिस्टम है, इसको अपग्रेड करना। सो द सिस्टम लाइक आई सेड 2010 में वाज इम्प्लीमेंटेड। उस टाइम इट वाज उस जमाने में वी वर रियली अहेड ऑफ द कर्व। So now is the time कि हम उसको अपग्रेड करें and to leverage more technologies. There are many improvements, काफी सारी improvements कर सकते हैं from a user experience and user enhancement perspective. So वो focus area उस पर काम already हो रहा है। तीसरा एरिया है जो फाइनेंशियल डेटा आता है। सो आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ज्यादातर PDF फॉर्मेट्स में आती हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती है, एक्सेल फाइल्स होती है। तो उसको डिजिटाइज किया जाए और ताकि उस पर एनालिटिक्स, ट्रेंड्स बिल्डिंग और उसको ऑटोमेट किया जाए उस प्रोसेस को। सो उसके लिए हम स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री, ताकि वो चीज़ अवेलेबल हो सेंट्रली। सो दिस इज अनदर पिलर अंडर लीप। चौथी चीज़ ये है कि देखें, एज द रेगुलेटर वी होल्ड अ लॉट ऑफ डेटा। हमारा बहुत डेटा है कॉर्पोरेट सेक्टर का, एंड वो डिफरेंट एंटिटीज हैं, FBR है, फाइनेंशियल सेक्टर है, बैंक्स हैं, दे कैन बी द एंड यूजर्स फॉर दैट डेटा। एंड नाउ विद द सैंडबॉक्स अप्रोच हम आगे बात करेंगे, लॉट ऑफ फिनटेक फर्म्स कैन बी द एंड यूजर टू डेवलप न्यू बिजनेस मॉडल्स एंड सर्विसेज। तो हमारा द अदर पिलर इज के टू बिल्ड एन API बैंक। सो द इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, हाउ कैन वी डिजिटली use and use this information for different use cases electronically. So for example, अभी हम स्टेट बैंक के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे बैंक्स कॉर्पोरेट सेक्टर की KYC या अकाउंट ओपनिंग करते हैं। सो सारी इंफॉर्मेशन आज मैनुअली और फिजिकली कलेक्ट करनी होती है। सो वी आर वर्किंग विद स्टेट बैंक ताकि डिजिटली थ्रू APIs वी कैन प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन, हम बैंकों को वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड कर सकें। और लास्ट चीज में है हमारी अपनी इंटरनल डिजिटाइजेशन। वी वांट टू टोटली गो पेपरलेस। हमारे जितने ऑपरेशंस हैं इंटरनली, पेपर को एलिमिनेट किया जाए, हमारे सिस्टम्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, वर्कफ्लो सिस्टम्स अवेलेबल हो, एंड वी डू ऑल आवर इंटरनल वर्कफ्लोज ऑन द सिस्टम। सो ये 3-4 जो बड़े पिलर्स हैं अंडर द लीप प्रोग्राम। जिस तरह मैंने कहा, STR इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, बाकी पिलर्स पे काम चल। ठीक है, तो आप अभी STR को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, बिकॉज जो स्मॉल मीडियम कंपनीज है। दूसरा मैं एक ये भी करूंगा कि हम अक्सर ये समझते हैं बहुत सारा स्मॉल मीडियम कंपनीज जो है दे आर बेस्ड ऑन प्रोप्राइटरशिप सिस्टम, वो SCCP के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते। क्या वो भी SCCP के लॉ के अंडर आते हैं, या उनके लिए कितना आसान है टू कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ SCCP, और दे कैन स्टार्ट विद ऑल व्हाटएवर द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग? जी, सो पहली चीज STR को मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। STR इज डिजिटल कोलैटरल रजिस्ट्री सिस्टम, और उसकी इट वाज एस्टैब्लिश्ड, इट वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द रीजन कि SMEs और अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस को हेल्प की जाए फ्रॉम अ फाइनेंसिंग पर्सपेक्टिव। सो वेदर यू आर अ प्रोप्राइटरशिप और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, you can leverage the services which can be offered under STR. STR में SCCP is the registrar of the STR system. So जिस तरह registrar of companies है, इस तरह registrar of secure transaction registry है। Companies के लिए already assets की जो registration है, that law and that system was already available. बट और अदर अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज के लिए फैसिलिटी नहीं थी। सो थ्रू दिस व्हाट इज हैपनिंग इज कि जहाँ पे बैंक्स फंडिंग करेंगे, सो दैट एसेट नाउ हैज लीगल वैल्यू।
Okay. And उसके लिए law पहले बना, which State Bank and Ministry of Finance carried out that work, and since last year we started working on implementing the system, the registry. So law था, system नहीं था, system आ गया, and now it is available to banks. Already banks have thousands of loans have already been registered on the system, and like I said, SMEs या small borrowers can benefit, उसका फायदा उठा सकते हैं. In terms of registration, अगर जब आपने decide कर लिया कंपनी आपको एक बनानी है, different forms of company available हैं, हमारे CRO offices भी हैं, means different शहरों में. इसके अलावा जिस तरह मैंने mention किया कि system is online, you can go online, you can do it yourself. बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि lawyer चाहिए, सही, कंसल्टेंट चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, बट आप खुद भी ये कर सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं अंडर आवर लीप प्रोग्राम, और टू मेक इट मोर easier फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड टू रजिस्टर देयर बिजनेस. Okay, excellent. So next question मेरा the start attract करने के लिए and the local ecosystem और entrepreneurs को के लिए आपकी जो है वो क्या पॉलिसी है, आप क्या प्लान कर रहे हैं उनके? अच्छा, इसके लिए हमने काफ़ी काम किया है. सो लास्ट ईयर वी स्टार्टेड, हमने जो स्टार्टअप स्पेसिफिकली इकोसिस्टम जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनके साथ एंगेजमेंट स्टार्ट की, एंड काफ़ी एक्सटेंसिव एंगेजमेंट रही हमारी. हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े सेशंस भी किए, और सारे इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स और इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट भी किया. वी गॉट अ लॉट ऑफ फीडबैक कि कहाँ चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं और इम्प्रूव की जा सकती हैं, एंड उसके रिजल्ट में अर्लियर दिस ईयर जो एक्ट में चेंजेस हुई, उसके तहत ऑल द जो मेन फीडबैक था इंडस्ट्री का और इकोसिस्टम का, सो वो लेजिस्लेटिव चेंजेस वर अप्रूव्ड, जिसमें ब्रॉडली आई डिफाइन, पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप, तो स्टार्टअप का लॉ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सो इट हैज़ बीन डिफाइंड, उसकी डेफिनेशन इज नाउ पार्ट ऑफ द लॉ. दूसरी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इन टर्म्स ऑफ सिमिलर टू इंटरनेशनल जुरिसडिक्शन, जहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को की फ्लरिश के लिए एक चीज़ और एक लॉ के अंदर स्टार्टअप्स को ऑप्शन अवेलेबल होता है फॉर इशुएंस ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस. वो अवेलेबल नहीं थे, वो पब्लिक कंपनीज को अवेलेबल थे पहले, वो स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल नहीं थे. सो दैट हैज़ बीन एनेबल्ड लॉ के अंदर. सो टुडे स्टार्टअप्स कैन इशू देयर शेयर्स टू देयर एम्प्लॉयज एज वेल. सो ये आपको पता होगा एक तरीका है टू इनकरेज एम्प्लॉयज एंड बी इनिशियल स्टेज में जब कैश फ्लो के चैलेंजेस होते हैं, सो ये तरीका है टू गिव सम इक्विटी एंड टू एंगेज एंड मोटिवेट पीपल टू जॉइन स्टार्टअप. तीसरा इशू था बायबैक से रिलेटेड. सो जब दो फाउंडर्स कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारी स्टार्टअप्स फेल हो जाती, सो वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं था जहाँ पे 2 या 3 फाउंडर्स हैं, और जब वो एक स्टेज के बाद कंपनी छोड़ते हैं, सो द कंपनी और द स्टार्टअप शुड हैव ऑप्शन टू बाय बैक दो शेयर्स, तो वो भी इनेबल कर दिया गया. चौथा जो है आपका जो लॉ में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि स्पेसिफिकली इनोवेशन से रिलेट करता है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सैंडबॉक्स, जो कि हमारे एजेंडा पे है आज बात करना, उससे भी रिलेट है, एंड गिव्स SECP दी पावर टू ड्राइव सम ऑफ दीज इनिशिएटिव्स. सो पहले से हम बहुत सारे कर रहे थे, बट नाउ अंडर द लीगल फ्रेमवर्क SECP कैन ड्राइव द सैंडबॉक्स, द इनोवेशन अप्रोच, और इसको लोकल जो इंडस्ट्री और इकोसिस्टम के साथ gives it the flexibility to drive some of these initiatives. So I think ये कुछ initiatives थे, इनको ecosystem ने बहुत ज़्यादा appreciate किया, startup ecosystem ने.
एंड इसमें बहुत सारा इनपुट फीडबैक, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, एंड यू नो इट वाज joint effort between different parties to finalize these proposals, इनको final करके legal form में इनका approval करवाना. So that one way, so that was done. That was a big step to promote the startup ecosystem. उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये changes की जाती. इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ जो लिंक थी, so जब हमने सेशन स्टार्ट किए, so बहुत सारे startup founders, fintech firms, वो हमारे पास आते हैं, they would talk about different new ideas, or they want to bring new model or new services, जो कि हम टुडे आज अंडर लॉ उसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, या हम उसे रेगुलेट नहीं करते. एंड व्हाट वी थॉट वाज द बेस्ट वे is to start a sandbox. And so earlier this year we started the sandbox. Earlier this year, I think आप डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद. So आवाज आ रही है आपको? मे बी शायद. आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है, मुझे आवाज क्लियर आ रही है. So earlier this year we thought कि we'll start focusing on having a sandbox approach. उसका फायदा ये होता है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, is evolving very fast, and based on that नए business model, new services, people are coming up with new ideas. So what we agreed was हम इसको sandbox approach से address करेंगे. We will ask entrepreneurs or startups and fintechs to apply in our sandbox, and we will work with them. जहाँ पे, and the idea is कि जहाँ पे regulatory framework exist नहीं करता, तो उसको एक controlled environment में उनके साथ उसकी testing करें, see how it works out, और उसको फिर full scale license या full scale regulatory framework में translate किया जाए. ठीक. So हमें बहुत सारी applications आई पहले phase में. पहला cohort हमारा चल रहा है अभी. Broadly, some of the areas which were covered in the sandbox, so people applied for on digital insurance, digital platforms, mutual funds के लिए, robo advisory, crowdfunding, P2P lending, digital identity, and blockchain के solutions थे, etc. So these were some of the broader categories. फिर इसको we had presentations with all the applicants. We went through their proposals. उसको हमने एक shortlist किया, and the shortlist category is अभी उसकी second round of evaluation चल रहा है. And our intention is कि by August we finalize the 4-5 firms जहाँ पे हम approval देंगे to be accepted in the cohort, और उनकी live testing in a controlled environment will start. And the idea is कि इसको 6 महीने तक we will work with these firms to see how this develops, and at the end of that, अगर वो if we feel कि इसको fully regulated framework create करना चाहिए, then we will create it and allow these businesses to start operating at a full scale. So this is a very important tool to encourage innovation and growth for the fintechs and startup ecosystem. So very excited to be part of it and driving this through SCCP. So वो startups जो plan कर रहे हैं, they are looking towards के जी SCCP की तरफ से हमें support मिले, maybe they are in fintech या जो भी. So how they would actually approach you? Is there any form available in the website? वो किस तरह आपको approach करेंगे? जी, तो उसकी अनाउंसमेंट हमने पहले कोहॉर्ट की अनाउंसमेंट की थी अपनी वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे प्रेस रिलीजेस की थी, और उसका बड़ा सिंपल तरीका है. हमारा एक मेल बॉक्स है, सेंट्रलाइज मेल बॉक्स. हमने गाइडलाइंस इशू की हुई है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और उस गाइडलाइंस को देखते हुए these startups or fintech companies, they have to make their proposal and then submit it electronically on our mailbox. इसके अलावा उसकी आई थिंक माइनर सी फीस है जो कि अगेन डिजिटली कैन बी पेड और थ्रू अ चालान इन अ बैंक, और you can submit and then you can submit the application. So
दिस इज हाउ उसकी अनाउंसमेंट होती है. सो पहला कोहोर्ट उसकी एप्लीकेशंस का टाइम एक्सेप्ट करने खत्म हो चुका है. अब हम इवैल्यूएशन फेज में, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल डिसाइड कि सेकंड कोहोर्ट जो है कब स्टार्ट होगा. इसी से रिलेटेड जो तीसरी चीज है, जो एक चीज पे मैं इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंशन, ऑल्सो वी आर लुकिंग एट एंड एक्सप्लोरिंग के सो दिस इज अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, बट इसको हम एक्सटेंड करके इनोवेशन लैब का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट करें. सो इनोवेशन लैब से मेरी मुराद ये है कि वेयर वी फैसिलिटेट दी स्टार्टअप्स और फिनटेक्स जो कि सैंडबॉक्स में हैं या जो नहीं भी हैं, to give them the opportunity to connect with the industry. So let's assume आपने आज कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बनाया है, बट आपको ये नहीं पता कि इंश्योरेंस सिस्टम्स कैसे चलते हैं, या आपको ये नहीं पता कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास किस टाइप का डेटा है, या आप किस तरह कनेक्ट करेंगे अपना प्लेटफॉर्म को इन कंपनीज के साथ. सो इनोवेशन लैब का कॉन्सेप्ट ये है कि वेयर वी कैन प्ले दैट रोल एंड कनेक्टिंग बोथ द इंडस्ट्री विद द फिनटेक्स एंड द स्टार्टअप फाउंडर्स, और उनको प्लेटफॉर्म मिले टू डू अ प्लग एंड प्ले, जहाँ पे लाइव डेटा तो नहीं होगा बट डमी डेटा, बट that will build that understanding between the fintech startups as well as the industry. Okay, what products or services they are making and how can the industry leverage. As you know, ज़्यादातर जो models दुनिया में it's joint collaboration, जहाँ पे the fintechs work with the financial industry. So that's another initiative which we are working on. Okay, excellent. So ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा, दे आर नॉट बीन सेलेक्टेड. तो आपका अभी तक कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिसमें वो एवेल्युएट हो रहे हैं, मे बी दे आर वेटिंग फॉर कि जी हमें कोई हाँ या ना हो जाए? नहीं, सो जो पहले राउंड की इवैल्यूएशन थी उनको तो आई थिंक वी हैव टोल्ड पीपल हु वर नॉट सिलेक्टेड. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड देम. ओके, बट दे कैन डेफिनेटली अप्लाई इन द सेकंड कोहोर्ट. और जो जी कंटिन्यू करें. और जो अभी शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स हैं उनका भी इवैल्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, एंड विच विल गेट फाइनलाइज्ड बाय नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह. और उसमें वी विल नोटिफाई जो फाइनल 4-5 कंपनीज हैं जो कि अप्रूव होती है. देखिए, इसमें जो है इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एट द एंड जो भी 4-5 एप्लीकेंट्स और जो भी मॉडल्स या बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं, हमारा भी एंड ऑफ द कोर्ट हमारा आइडिया कि इनको सक्सेसफुल बनाया जाए. राइट, दीज बिजनेसेस और ये आइडियाज गेट कैन स्केल अप. देयर इज so that is the idea. So इसमें as you can imagine there's a lot of commitment and human resource perspective involved from our side. और you know evaluation process को go through करना, presentations लेना, detailed discussions करना, evaluations करना, and then cohort में working with these. So we also it is the first time we were doing so. हमारा idea यही था कि you know take on as much as we can deliver. And if there is enough demand from the market, from the industry के इसको और scale up किया जाए in terms of the number of applications. So with time we'll understand and we'll see that, and अगर ज़रूरत पड़ी then we'll accordingly do that. Okay. So the second topic for the discussion is कि as we already know कि जी पाकिस्तान में ease of business का जो ranking है वो काफ़ी improve हुआ है. तो SECP itself for you know encouraging these small medium companies, although corona और covid की वजह से जो है we have faced a big hit in the market. तो फ्यूचर में SECP के क्या plans हैं to you know support this local ecosystem के small medium companies जो हैं they come up with some you know innovative ideas और यहाँ पे ease of business उनको जो है वो you know ज़्यादा बेहतर conducive environment मिले? So I think last year आपने सही कवल का Pakistan's overall doing business ranking improved a lot. And उसमें अगर आप starting a business देखेंगे that had the most jump. The biggest delta and jump was in starting a business in Pakistan. और उसकी वजह भी यही है कि you know in terms number of initiatives जो मैंने कुछ you know मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए जो हमने लिए हैं, integrations करना, system प्रोसेस को डिजिटाइज करना, ऑटोमेशन करना, डिफरेंट एंटिटीज को लिंक करना.
सो दी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल वो रैंकिंग और बेहतर हो। ओके। सो एक तो तरीका है, एक तो चीज़ है फैसिलिटेशन फ्रॉम डिजिटल चैनल्स, दूसरी चीज़ है द लॉ, जो लीगल फ्रेमवर्क। सो जो हमारे पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क की टीम्स हैं, सो देव आल्सो दे कंटिन्यू टू वर्क। इस साल भी चेंजेस किए टू एलिमिनेट रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, या रिक्वायरमेंट्स जो कि डिफिकल्ट हैं बिजनेसेस के लिए मीट करना। सो उम्मीद हमारी यही है कि इस साल जब इवैल्यूएशन होगी बिजनेसेस की, सॉरी जब वर्ल्ड बैंक अपनी असेसमेंट करेगा, सो पाकिस्तान की रैंकिंग शुड फर्दर इम्प्रूव। ओके, इंशाल्लाह। इसके अलावा जो मैंने जिस तरह डिस्क्राइब किया कि लीप में हमारा द आइडिया है इसके हमारा कॉर्पोरेट रजिस्ट्री सिस्टम है, इसको फर्दर अपग्रेड किया जाए, उसमें इंटीग्रेशंस को और इम्प्रूव किया जाए, यूजर इंटरफेस आसान बनाया जाए, और लोगों के लिए इट शुड बी, मेरा विजन ये है कि इस तरह जिस तरह फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, ट्विटर का अकाउंट बनाते हैं, कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, सही। तो इतना आसान होना चाहिए कि इट इज वेयर पीपल कैन लॉग इन, इतना आसान हो, गाइडेंस अवेलेबल हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट they can start doing their business, or once the company is registered they can also it's also very easy for them to comply जो law की requirements हैं। So बहुत सारा काम लास्ट ईयर हुआ है। STR में भी हमारे जो हैं बहुत मेजॉरिटी इंडिकेटर्स डूइंग बिजनेस के वो कंप्लाइंट नहीं थे, बट STR की वजह से वहाँ पे भी एक्सपेक्ट के सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगी, एंड इट विल हेल्प इन पाकिस्तान ओवरऑल रैंकिंग। इसके अलावा ड्यूरिंग कोविड आई थिंक SCCP ने, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो इनकरेज किया बहुत ज़्यादा ऑन BCP अरेंजमेंट्स, ऑन यूजिंग डिजिटल चैनल्स, बोर्ड मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिकली करने के लिए, फाइलिंग्स में, रिटर्न्स में टाइम दिए, एग्जेम्पशंस दिए, ताकि पीपल कैन एंड दीज बिजनेसेस कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं, सो दे कैन पास ऑन टू द बेनिफिट। सो पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ लार्ज और स्मॉलर बहुत सारा काम ड्यूरिंग कोविड हुआ है। ऑल दैट इंफॉर्मेशन एक्सेंटली जगह अवेलेबल है वेबसाइट पे, एंड दीज बिजनेसेस इफ दे आर नॉट अवेयर, वेबसाइट पे जाके दे कैन फाइंड दैट इंफॉर्मेशन व्हिच इज इजीली अवेलेबल। सो हमारा फोकस यही रहा है कि डिजिटल चैनल्स को प्रमोट भी किया जाए, तो जहाँ कंप्लाइंस की भी ज़रूरत है बिजनेसेस कैन लेवरेज डिजिटल चैनल्स और उसके थ्रू कंप्लाइंस करें। ओके, एक्सीलेंट। सो अभी मैं खुद ज़ाती तौर पे ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अमूमन जो वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अथॉरिटी पे काम करती हैं, दे आर दे हैव अ डिस्कनेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स, जबकि SCCP का अभी मैं काफ़ी अरसे से ज़ाती तौर पे भी विटनेस्ड हूँ कि आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चल रहे हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमें नहीं आइडिया था कि एक स्टार्टअप के लिए आप इस तरह का कोई एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाएंगे, और उसको आपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया, और आप सजेशंस ले रहे हैं, ओपन सजेशंस ले रहे हैं। तो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि जी आपका ये एक इनिशिएटिव है जिसको आप इतने अमेजिंग तरीके से पेनिट्रेट कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। तो उस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपका जो रेगुलेटरी है फॉर द सैंडबॉक्स, और उसमें क्या इनोवेशन है, इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करें और बताएं, सो दैट फर्दर स्टार्टअप्स, आई एम श्योर कि आप सारे स्टार्टअप्स तक ऑलरेडी पेनिट्रेट कर चुके होंगे, बट फॉर द ऑडियंस हम चाहेंगे कि आप बताएं। अच्छा, पहली चीज़ जो, एंड थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, जो आपने पहली चीज़ मेंशन की, हमने जब आई थिंक द स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की जो आपने बात की, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हमने अपने जो कंपनी रजिस्ट्री के लिए भी जो इम्प्रूवमेंट्स थे, उसके लिए लास्ट ईयर हमने 3 सेशंस की। हमने वी इंट्रोड्यूस्ड द डिज़ाइन थिंकिंग मेथडोलॉजी इंटरनली, कि कोई भी जो काम करना है वी शुड बी ड्रिवन बेस्ड ऑन व्हाट द कस्टमर नीड्स इज, और कस्टमर की पेन पॉइंट्स के हैं। तो हमने काफ़ी डिटेल सेशंस ऑन आवर कंपनी रजिस्ट्रेशन में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में किए। हमने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया, एंड वी टुक ऑल दैट फीडबैक टू अंडरस्टैंड के पेन पॉइंट्स के हैं। सो इंटरनली बहुत ज़्यादा फोकस है प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने का, और उसके लिए वी यूज डिज़ाइन थिंकिंग नाउ एज अ स्टैंडर्ड अप्रोच, कि जहाँ पे भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जाए, अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स, सो वी हैव एन आउटसाइड इंटरनल इन व्यू, rather than कि हम इंटरनली चीज़ों को फिक्स करें एंड देन सी व्हाट द फीडबैक इज। तो दैट हैज़ मेड अ बिग इम्पैक्ट। और उसके लाइक आई मेंशन, सिमिलरली जो सैंडबॉक्स की आप बात कर रहे हैं,
इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ मैं पर्सनली भी और बहुत सारे लोग SCCP में इन्वॉल्व रहे हैं in connecting with them, in getting feedback. So जो 3 सेशंस मैंने मेंशन किए थे सैंडबॉक्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, वी हैड इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. एंड आइडिया इज, हमेशा आइडिया यही होता है कि स्टेक होल्डर फीडबैक लिया जाए, और जब फीडबैक लेके हम कुछ ड्राफ्ट करते हैं, हम दोबारा शेयर करते हैं तो स्टेक होल्डर से, एंड देन वी देन अगेन टेक फीडबैक टू अकाउंट फॉर के लोगों के जो मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं दैट कैन बी एड्रेस्ड. सो आप सही कह रहे हैं. आई थिंक जो मेजॉरिटी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, मैं खुद कई इंक्यूबेशन सेंटर्स पर्सनली विजिट कर चुका हूँ. बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन रह चुका है. मेरी टीम्स, अदर पीपल इन SCCP, दे फ्रीक्वेंटली विजिट इंक्यूबेशन सेंटर्स. उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं उनको, और ऑल्सो टू टेक फीडबैक. एंड वी हैव ऑल्सो, जिस तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा था इनोवेशन लैब की, सो हम इनोवेशन ऑफिस का भी कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में विल वर्क विद द स्टार्टअप इकोसिस्टम. Excellent. And we will hold, for example, webinars. We'll pick up topics, what are challenges, pain points, and we'll address that. So that concept is also coming, and we are already working with incubation centers उसमें. So the idea यही है, जिस तरह मैंने पहले mention किया कि जो demand है industry की, बहुत सारी fintech companies थी, they wanted us to start regulating new businesses, तो उनकी help की जाए, उनको support की जाए, and through the sandbox we thought ये सब joint collaboration is the best approach in terms of making this initiative successful. Okay. So मैं इसी सैंडबॉक्स के बारे में भी बात करूंगा कि हमने ये सुना काफ़ी टाइम से कि पाकिस्तान में क्राउड फंडिंग जो है उसको अभी फ़िलहाल मना है. तो वो एक हमने देखा था, एक क्लॉज जो है वो उसमें इनेबल किया गया है. तो इसको अगर इस पॉइंट को थोड़ा सा आप एलैबोरेट करें सो दैट हमारी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए. जी बिल्कुल सही. सो जो स्टार्टअप वाले सेशंस थे जिनकी मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट, जिनकी मैं बात कर रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड आई वुड से क्राउड फंडिंग की थी. जो एंटरप्रेन्योर्स थे और फिनटेक कंपनीज थी, सबसे ज़्यादा आई वुड से पीपल वांटेड के SCCP स्टार्ट्स रेगुलेटिंग क्राउड फंडिंग. एंड वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क. हमने एक ड्राफ्ट फ्रेमवर्क भी बनाया. वी शेयर्ड विद सर्टेन स्टेक होल्डर्स ऑल्सो. But then we thought, देखें हमारे दो जॉब, it's important कि regulator also wears the hat of investor protection. So while we are trying to facilitate, promote digitization, we also have a critical role from an investor protection perspective. So we have to make sure we are balancing both things. And उस time what we decided was कि the best approach is to create this crowdfunding framework through the sandbox. So like मैंने आपको पहले मेंशन किया था, बहुत सारी एप्लीकेशंस क्राउड फंडिंग की भी आई. We have shortlisted few, and if they get through the second round of evaluation, then we will work with them to finalize, tweak, and understand कि अगर इस मॉडल को किस तरह स्केल अप किया जाता है, और उसका रिजल्ट ये होगा एंड में कि we introduce that framework for licensing crowdfunding firms in the future. So that is the idea. But the route is through the sandbox, and this is what we thought is better approach यही है कि इसको sandbox के through introduce किया जाए. Okay. अगर आप US में भी देखेंगे, जहाँ पे it's one of the biggest markets capital raising के perspective से, so आप देखेंगे क्योंकि US में भी जो crowd funding का जो portion है for capital raising is a very small portion. और उसकी वजह ये है कि उन्होंने भी they are slowly taking it. They did allow it, but with certain controls, and usko they are, because it's a high risk activity. So in a controlled environment, they are monitoring it, and slowly they're allowing it to grow. ऐसा नहीं है कि एक दिन से, पहले दिन से you allow it, you can touch anyone, you can go to anyone to raise money, etc. So it's important कि वो सारी चीजें factor करके the framework gets launched. Because हम इन पाकिस्तान हम लोग फिर कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढ ही लेते हैं जहाँ पे जो है हम लेवरेज कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक है कि एक इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से कि उसको भी सिक्योर होना जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है. और देखिए, आपने अगर कहीं किसी इनिशिएटिव में, किसी प्रोजेक्ट में अगर आपको इक्विटी मिल रही है एंड आप यू वांट टू इन्वेस्ट,
So as an investor, you also need to understand क्या transparency है, क्या controls हैं, who are the sponsors, project क्या है, return क्या होगा, mechanism क्या है, etc. etc. So that all those controls we need to ensure that they exist before the activity gets operational. ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें आया है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है बट मैं इसको नरेट कर देता हूँ। बट यू नो, आउट ऑफ दीज ऑल दीज थिंग्स है, हमने अमूमन ये देखा है कि ये जो MLM कंपनीज होती हैं, दे यू नो themselves register as a private limited company और फिर वो यू नो पब्लिक में पेनिट्रेट करते हैं और somehow the other, इस पे अभी तो कोई रेगुलेटर बना है? बिकॉज ये पब्लिक को बड़ा इजीली इंगेज कर लेते हैं और फिर जो है वो एक पूरा एक मैकेनिज्म ड्रॉ कर देते हैं। हम लोग वर्बली तो उनको मना करते हैं कि नहीं, ये आपका पैसा एक जगह जाके फंस जाएगा, बट वो फिर अभी तक इसका कोई लॉ डिक्लेयर हुआ है? सॉरी, MLM से कवल व्हिच टाइप ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं। वो ये क्या करती हैं कि एक प्रोडक्ट होती है, वो एक को कहते हैं आपने ये खरीदना है और आपने 3 लोगों को या 5 लोगों को रेफर करना है, तो वो एक पूरा एक यू नो एक सिस्टम बनता जाता है। तो ये अभी विटनेस हुए हैं, काफी कंपनीज जो दरमियान में आई हैं। और अच्छा, हमारे यहाँ what happens is typically you know there's a very robust complaint mechanism in place, and there are many companies where SECP in the past has taken action again under law, and the idea is कि जो अगर लोगों के साथ fraud हो रहा है या public at large का नुकसान किया जा रहा है, so you know they can so anyone can easily register a complaint, and that gets in, you know, there's a robust mechanism of the complaint being investigated, और अगर हमारी रेमिट के अंदर आता है, you know, then action will be taken. In the past आता रहता है, and अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो frequently you will see कि हम नोटिस लगाते रहते हैं जहाँ पे कंपनीज where we have issued warnings या पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कि इन कंपनीज से मोहतात रहें या इनके साथ डील मत करें एक्सेट्रा। ओके, ग्रेट। हाँ, वो इवेंचुअली वो कंपनीज आगे जाके बंद तो हो जाती हैं, बट यू नो के इनिशियल स्टेज पे अगर हो जाए। बिल्कुल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जो पाकिस्तान में आई थिंक अभी उस तरह उसको टैकल नहीं किया गया, दैट इज अ साइबर सिक्योरिटी। सो उसको जो है वो SECP एज एन अथॉरिटी वो किस तरह देख रहा है? और बहुत सारी कंपनीज जो है ना, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो इस पे भी मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा सा इनपुट दें। अच्छा, हमने हमारा तो बहुत ज़्यादा फोकस है, एंड हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, एंड वी आर ऑलरेडी आल्सो वर्किंग राइट नाउ। सो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट्स, वी हैव इन्वेस्टेड इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट्स to make sure that from an infrastructure perspective we have the latest and cutting edge solutions available. Similarly, we started adopting the ISO 27001 standard for implementation of ISMS. So that's an international standard for information systems and security. So that implementation we have started. Uski 3 phases of implementation is in pipeline, and phase 1 we have already achieved and certified. phase 2 in process है और कुछ महीना बाद phase 3 भी due हो जाएगा। So इस साल से before the end of this year where we will be entirely compliant. I think इसके अलावा जिस तरह आपने mention किया internally जहाँ पे we have really upgraded our infrastructure, और इसके अलावा you know regular assessments, risk assessments, governance framework, you know, making sure we have the people with the right skill set available, and so it's been a high priority area. We continue to focus. कुछ और भी projects हैं pipeline में in terms of automating a lot of some of the manual work जो इस cyber security domain में है, and to enhance our efficiency etc. So that's one area. So and we are very focused on it. It's part of the top management agenda as well, and we are driving towards you know achieving these standards to make sure you know we can we align ourselves with the highest international standards which exist. Okay. So वो definitely area, as you can imagine, all type of entities can be at risk, and
especially being a public sector regulator, हमारा focus यही है to make sure our infrastructure remains in top shape. Okay. IT गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में आप थोड़ा फर्दर बताना चाहें? जी श्योर. सो आई थिंक हमने स्टार्ट किया था एंड दैट इज कपल ऑफ इयर्स बैक. सो ITIL का जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वहाँ से स्टार्ट लिया था एंड आर आइडिया इज के विद एंड स्पेशली विद इन लीप इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम एंटरप्राइज लेवल IT गवर्नेंस की तरफ मूव करें. सो आर आइडिया इज कि कोविड की तरफ ITIL से स्टार्ट किया, कोविड की तरफ जाएं and to basically make sure when making decisions, IT level specific decisions, या जहाँ पे business goals की alignment आती है from what we are doing in technology, we are looking at an enterprise level governance structure. So that's what we are adopting internally and moving towards. So हमारी जो service operations हैं उसकी जो हमारा the service we provide to regulatory customers उसकी availability हो जाए या staffing की चीज़ें एक्सेट्रा, और या जो इन्वेस्टमेंट्स हमने कर चुके हैं या करनी है सो उसकी अलाइनमेंट बिजनेस प्रायोरिटीज के साथ. So that's the idea to continue to look at from an enterprise level और उसी तरफ जाएं आगे. Okay. ठीक. पाकिस्तान में हम लोग ये देखते हैं कि it's full of potential and full of talent, amazing talent है. To retain that talent, SCCP के पास ऐसी क्या strategies हैं so that people can get connect with you और कहीं collaboration में किस तरह कहीं काम हो सके? Is there any strategy SCCP is thinking of? I think हम लोग जो हैं स्पेशली अगर आपको पता होगा टेक्नोलॉजी एरिया में टेक्निकल स्किल सेट की इसकी ज़रूरत बहुत है. And so we have a very robust team. हर साल हम जो हमारा जो बड़ा robust training and development agenda we put in place सारे employees के लिए. अब तो आपको पता है कोविड में there is no possibility of physical trainings, so everything is online. और आइडिया ये होता है कि to assess हर individual की strengths, their weaknesses, and to identify कि उनके development areas क्या, both from a technical skills perspective and also their professional development, so interpersonal skills, communication skills. And इसके अलावा, like I mentioned, the opportunity to do a lot of projects इतने सारे हैं. I mean, I talked half of the time I talked about different projects, but इतने सारे projects हैं, इतने सारे projects pipeline में हैं. That we use this as an opportunity where people feel motivated. They are making a difference. They're making a difference at an organizational level, at a national level, and that is something we use to, encourage employees, motivate them, and then accordingly when they deliver, reward them. But like I said, training and development is an important agenda for us. उस पे हमारा बहुत ज़्यादा focus होता है, and so that's a continuous process for us internally. So and that is how. That's one of the areas where how we retain our talent. Okay. तो SCCP जो है वो किस तरह सपोर्ट करता है फॉर कंपनीज कि वो जिनकी जो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें आप जो है वो कंपनीज को कैसे मेक श्योर करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं? अच्छा, इसमें आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट हमने कुछ अर्सा पहले इंश्योरेंस सेक्टर के लिए साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क इशू किया. Okay. And the idea was start focusing from a financial intermediaries, क्योंकि जहाँ पे companies like insurance companies आपको पता है कि they have personal information, confidential information and large amounts of data. So that was one set of industry where we started with and issued a set of framework and guidelines. They are again available on our website, and I think they're quite comprehensive and can be used and adopted by different set of companies. Idea हमारा यही है कि जिस तरह मैं ISO 27001 की बात कर रहा था, so as part of that we continue to provide guidance to the industry. जो हम काम खुद भी कर रहे हैं, our objective is हम इंडस्ट्री के साथ भी शेयर करें.
so they can also learn and implement some of the best practices and leverage some of the learnings from us. So the idea is कि continue to issue guidelines. हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है and we continue to issue that information. So बहुत सारी information available and we will continue to do so. So look out for that and we will, as with time, इस topic पे भी specifically continue to issue guidance in the future as well. Okay, इंशाल्लाह. So I think जो पिछले इतने टाइम का जो एक गैप है, वो गैप आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है वो स्पेस के साथ आ जाए जहाँ पे द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आर एक्चुअली कमिंग इन. और हमें टू बी वेरी फ्रैंक बिफोर मीटिंग यू, आई एम बेस्ड इन कराची, तो हम लोग जब कभी कोई कहीं बैठते हैं तो हमारे जहनों में यही होता है कि SCCP एक ऐसा इदारा होगा जहाँ पे बड़े बड़े रजिस्टर्स पड़े होंगे दीवारों तक और सब चल रहा होगा. सो लोगों का पर्सोना बेसिकली यही है और कहते हैं कि जी ठीक है जैसे बाकी गवर्नमेंट इदारे चल रहे हैं. बट व्हेन आई एक्चुअली केम और मैंने सब देखा तो माशाल्लाह एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक. आप लोगों ने ऑटोमेशन को अडॉप्ट किया हुआ एंड देन मैंने पूरा चैटबॉट को देखा है वहाँ पे जो वेबसाइट पे चल रहा है एंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें. आई थिंक जो सिंगल मेंबर कंपनी है वो तो इट्स वेरी इजी, वो तो आप वहीं पे ऑनलाइन ही रजिस्टर कर सकते हैं, चालान पे करते हैं ऑनलाइन और एवरीथिंग इज अवेलेबल. So I would like to cover just add to that and thank you for mentioning that. So जो आपने चीजें कही बिल्कुल very valid and this is some of the work जो organization like I said top management का and senior management focus is there and their support is essential and critical to drive change. तो वो बड़ा जरूरी होता है. और दूसरा जो जिस तरह मैंने आज थोड़ी बात की लीड प्रोग्राम की, इसके अंदर जो काम ऑलरेडी हो रहा है और जो प्रोजेक्ट्स और जो पाइपलाइन में चीज़ें हैं, आई थिंक इंशाल्लाह अनदर 1 year और 1.5 years और 2 years यू विल सी के बहुत ज़्यादा और डिसरप्टिव चेंज आएगा, राइट, जिस तरफ हम जा रहे हैं. सो आपने आज सिंगल मेंबर कंपनी की बात की, बट आई वुड से ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, या आपको लाइसेंस लेना है, पीपल टिपिकली से कि जहाँ रेगुलेटेड लाइसेंस है वहाँ टाइम लगता है. सो हम सारे एरिया, सो वी आर रियली आइडेंटिफाइंग बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से सारे एरियाज अक्रॉस ऑल आवर प्रोसेसेस, ऑल आवर सर्विसेज व्हिच वी प्रोवाइड. एंड आई थिंक इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 to 2 years you will further see drastic change. I would say जो majority change है वो भी आया नहीं है, that's work in process. और इंशाल्लाह if we remain committed to this fact, इंशाल्लाह, so we will be able to achieve those objectives. नहीं, वो नज़र आ रहा है इंशाल्लाह कि वो होते हुए भी नज़र आ रहा है. सो वन कमेंट ऑन ट्रेनिंग, एक साहब ने पूछा है कि ट्रेनिंग्स का एजेंडा क्या होता है. तो अच्छा, हमारा जी अच्छा, इसके जो ट्रेनिंग एजेंडाज में देर आर, देखें जी, जिस तरह मैंने कहा, एक तो अभी आजकल फिजिकल ट्रेनिंग्स आर नॉट पॉसिबल. दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस तरह हम लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रहे होते हैं या मूविंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो हम एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज या उन प्रोडक्ट्स पे ट्रेन करते रहते हैं. So अगर कोई नया इक्विपमेंट है, let's say नई firewall has been implemented. So from a configuration perspective, training people on that, and we focus कि जो भी नई investments हैं उसके साथ training link हो and people are trained on the job as we continue to upgrade ourselves. इसके अलावा different training platforms available हैं, we leverage those. और इसके अलावा इंटरनली भी we brainstorm, we hold workshops to debate, to talk about new technologies and understand different use cases के from our organization perspective, वो ऐसे क्या use cases हैं जो कि we can implement, and then that also gives people an opportunity to implement some of these things and learn some of these things. I think Kawal got disconnected. जी, I'm sorry, I've lost my connection. Sorry. नहीं, no problem. Sorry, so I'll just repeat it. So मैं एक बात कर रहा था कि
जो हम व्हेन वी अपग्रेड आवरसेल्व्स, नए प्रोडक्ट्स लेते हैं, नए ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उसके साथ साथ एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स टू ट्रेन देम ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स। इसके अलावा डिफरेंट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो विच वी लेवरेज। इसके अलावा वी डू इंटरनल वर्कशॉप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम लोग एम्प्लॉयज़ को असाइनमेंट्स देते हैं। वी टेल देम टू कम अप विद यूज केसेस कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग एट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या यूज केसेस हैं जो कि वी कैन इम्प्लीमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजीज। तो बहुत ज़्यादा हम इंटरनली डिबेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन हो गया, बिग डेटा है, एआई है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, machine learning, etc. So how can we leverage some of these technologies internally? So, and train people accordingly and try to find and implement use cases. हमारा focus होता है proof of concept करें, and if that is successful, then implement change at a larger level. Okay. एक लास्ट मेरा ज़ाती क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में अभी इसको इतना कंसिडर नहीं किया गया और आईपीओ को हम सिर्फ एक कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की हद तक देखते हैं। सो इज़ देयर एनीवेयर एससीसीपी इज़ एक्चुअली लुकिंग टुवर्ड्स के हम एक वैल्यू बनाएं इसकी, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, सो दैट एक नॉट टेंजिबल प्रोडक्ट कैन हैव अ वैल्यू, और उस पर जैसे आप एसटीआर पे बात कर रहे हैं कि जी हम कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पे वैल्यूएशन के लिए कर सकते हैं। सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी देखें? ये मेरा जरा पर्सनल क्वेश्चन था। हाँ, सो देखें, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज आल्सो कवर्ड अंडर एसटीआर। ठीक है, तो एसटीआर में यू कैन आल्सो रजिस्टर दैट एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। दूसरी चीज जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देयर इज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IPO which deals with intellectual property law which already exists. IPO which already exists. जो हम काम कर रहे हैं, हम what we are working with IPO एक हमारा joint initiative है of integration, कि जहाँ पे अभी देखें दोनों चीजें इंटीग्रेटेड नहीं है, राइट? आप कंपनी रजिस्टर कर लें या नाम रजिस्टर कर लें, and then you can go and register or apply for filing an intellectual property or vice versa etc. तो हमारा इरादा है कि इन दोनों को इंटीग्रेट करके रियल टाइम जाए टू अवॉइड दिस डिस्पैरिटी और कॉन्फ्लिक्ट जो कि लेटर ऑन आ सकता है, राइट? फॉर एग्जांपल कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने किसी नाम पे अपना पेटेंट को रजिस्टर करा लिया लेकिन उसका आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं, सो दैट डिस्पैरिटी, सो वी आर वर्किंग टुगेदर, इट्स इन द पाइपलाइन. I think the idea is definitely in the short term it should be available and it will really facilitate ये जो आपका intellectual property है. इंशाल्लाह आई थिंक ये अगर हो जाता है तो एक आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक काफ़ी बड़ा आई थिंक हम चेंज देख सकते हैं कि कमिंग फ्यूचर में, बिकॉज यू नो एज वी मेंशन के आईटी सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है पाकिस्तान का, और फिर हमारे पास बड़े अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसको आगे जाके जो हम सेल कर सकते हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सॉरी कवल, आपकी आवाज कट रही है. जी जी, आपकी सॉरी आवाज थैंक यू सो मच. मेरे इंटरनेट का जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल जा रहा है. नहीं कोई मसला नहीं सर. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. वेरी हैप्पी टू बी. I mean, any questions, comments, feedbacks can also be emailed to me. And I'm happy to note अगर कुछ suggestions and feedbacks हैं, we are always open to receive those and to consider those and to act on it. So feel free if for anyone can also reach out to me, drop me an email or send their feedback. Excellent sir. Thank you so much Abdul Rahim sir. Thank you so much for your time. Inshallah next session भी आपके साथ हम कुछ टाइम में रखेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. टेक केयर जी. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.